वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए आज सम क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomial, different types of polynomial and geometrical meaning of their zeros. We have seen like zeros of linear polynomial, zeros of quadratic polynomial, zeros of cubic polynomial. Here I would like to draw some graph and we will see the number of zeros for the corresponding graph. So first graph is x, x dash, y or p of x, y dash. Next graph y, y dash. Next graph y dash, x, x dash. Next graph is number 4, x, y, x dash, y dash. Number 5, x, y, x dash, y dash. Number 6, y, y dash, x, x dash. I have drawn 6 different graphs. I would like to explain how many zeros would be there for each graph. Here as we see, graph p of x intersect x-axis at only one place here. So number of 0 equals to 1, because at only one place here graph p of x, that is polynomial p of x, intersect x-axis. That's why number of 0 equals to 1. As we see here, there are two places at which graph intersect x-axis. First place is here, another place is here. These two places are can be seen here, at which graph intersect. Hence number of zeros equals to 2. As we can see in this graph, there are 3 places, first place, second place, third place, at which graph intersect x-axis. So number of zeros equals to 3. As we can see for this graph, there is only one place at which graph intersect or polynomial intersect x-axis. So number of 0 equals to 1. For this graph, you can see graph or polynomial just touches x-axis. ठीक है? So number of at one place, at one point, so number of 0 equals to 1. Number of 0 equals to 1. Am I right?
No, it's a wrong. Why it is wrong? See, अगर ये ग्राफ, ये जो अपवर्ड है, पैराबोला है ग्राफ, ठीक है, अगर यह इस तरह से थोड़ा सा भी और डाउनवर्ड होता, if it would be downward little bit, then it would cut or intersect x-axis at two places. It means the value of zeros, that is the value of x, यहां पर कुछ होता, मान लेते हैं x इक्वल टू 2 एंड हियर x इक्वल टू 5, तो x के टू डिफरेंट वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती। अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं, यह दोनों वैल्यू अगर थोड़ा सा ग्राफ को हम ऊपर शिफ्ट करें तो दोनों वैल्यू क्या होगा, क्लोज आते जाएंगे। कभी तो दोनों वैल्यू ऐसा होगा जब दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो यही एक सिचुएशन है जिसमें बोथ वैल्यूज ऑफ x विच रिप्रेजेंट्स द सेम नंबर, x की सेम वैल्यू है एट विच ग्राफ जस्ट टचेज। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोज तो 2 हैं बट बोथ आर सिमिलर। सो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सेम। इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स कैनॉट अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ जीरोज। यहां पर सीधे बोला है कि एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पर टच कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे, बट नो, नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, स्टिल नंबर ऑफ जीरोज वुड बी 2 but both value will be same. Okay, now for this graph, as we can see here, there are 1 2 3 4 5, so 5 places are there at which graph intersect x-axis, so number of zeros equals to 5. We have seen different cases at which, for which number of zeros can be visualized easily. अब हम लोग यहाँ पर आगे देखें, इसी पर बेस होकर के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 NCERT बुक है। पेज आपका आप देख लीजिएगा कितना पेज नंबर है, मुझे नहीं पता। एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा था, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x इज गिवन for some polynomial p of x, find the number of zeros of polynomial p of x in each case. Case number 1, it is given graph is like this, x axis y x dash y dash, ठीक है, लिख भी देते हैं x dash y dash, ओके, एंड polynomial ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। As we can see here, how many zeros are there? तो यहाँ पर सिंस पॉलिनोमियल और ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, सो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन इन विच ग्राफ इज ड्रॉन x डैश y डैश, सो इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। As we can see, there is only one place at which polynomial intersect, hence number of zeros equals to 1. Number 3, third situation is given, x dash and y dash. See here, 1 2 3,
3 different places are there at which graph intersect x-axis, hence number of zeros 3. Number 4, graph is drawn here, x dash, y dash. Graph is given. Since there are two different places at which graph intersect x-axis, hence number of zeros equals to 2. Fifth one, x, y, x dash, y dash. We can see the graph intersect x-axis at first place, second place, third place, fourth place. So number of zeros equals to 1 2 3 4. And last question, which is very 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 critical. See here, graph is this. See, as we can see here, graph intersect x-axis at this place, touches at this place, once again x-axis पर टच यहाँ पर कर रहा है, ठीक है. तो 2 places are there at which graph just touches the x-axis and only 1 place are there at which graph intersect. So जहाँ पर टच करता है वहाँ पर 2 zeros होंगे, यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी 2 zeros होंगे at 1 place at which intersect. So 2 plus 2 plus 1, 5 zeros would be there. Number of zeros equals to 5. No doubt यहाँ पर x के जो वैल्यू होंगे जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल यहाँ पर सेम होंगे, -3 सपोज -3, ठीक है. एट x इक्वल टू -3 ग्राफ टचेज. यहाँ पर x इक्वल टू +5 मान लेते हैं कि 5 x इक्वल टू 5 पर ये टच कर रहा है, +5 +5. सो x इक्वल टू -8 -3 +5 देयर आर 5 प्लेसेस एट विच ग्राफ intersect or touches, hence there are 5 zeros would be there. Okay, so this was all about the question which is asking here number of zeros. Okay, so यहाँ पर हम इसको फिनिश कर दिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन. अब हम लोग बेहतरीन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं. वो टॉपिक है रिलेशन between zeros and coefficient of polynomial. Relation between zeros and coefficient of polynomial. Relation between zeros and coefficient of polynomial. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज, उसके बारे में हम लोग देख लिए. जीरोज होता पॉलिनोमियल. कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ठीक है. तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल, जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो जनरल फॉर्म p ऑफ x इक्वल टू क्या है, ax प्लस b. ठीक, polynomial in x, ax plus b. What is a? A is what? Coefficient of x, or simply we can say coefficient. And what about b? Constant. Okay, so 0 of p of x equals to, as we have seen earlierly, minus b upon a, or we can say minus of कांस्टेंट. ये b क्या है, कांस्टेंट है, माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट. ठीक है. नाउ
ये लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में था। अब यहाँ पर देखिए, ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है, कांस्टेंट है, और ये तो जीरो है। जीरो का मतलब है कि x की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल गिव्स जीरो। नाउ व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म इज p of x equals to ax square plus bx plus c, provided a not equals to 0 and a, b, c all belongs to real number. What is the name of this a? A is specially called coefficient of x square. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इन द सेंस मल्टीप्लायर। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया गया? ए से। ए का नेचर क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स रेशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। प्राइम नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। बट ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। वाई? ए की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, देयर इज नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस बिकम्स लीनियर पॉलिनोमियल। जब एक्स स्क्वायर यानी ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मस्ट एग्जिस्ट if a value not equals to 0. okay, what about b? b है हमारा coefficient of, बोलो, x, and what about c? c is nothing but constant. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसके जो जीरोज हैं, पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, ठीक, पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट यानी a, b और c के बीच में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, वो हम लोगों को देखना है। सो वन बाय वन करके धीरे धीरे हम लोग इसको देखते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन zeros of the polynomial and its coefficient, I would like to introduce the concept which you have already learned in 9th class, factorize करना, ठीक है। There are 2 to 3 different methods were there, you might have read in 9th class. सो यहाँ पर हम लोग स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को फोकस करते हुए एक दो एग्जांपल देखेंगे और फिर रिलेशन को समझाएंगे कि जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। सो नाउ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। नाउ आई वुड लाइक टू से मेक अ लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर में इसे क्या करें? ब्रेक करें। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपको सिखाया गया होगा, यू माइट हैव रेड इन 9th क्लास, कि मिडिल टर्म को देखिए माइनस 8x है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 2 और लास्ट या कांस्टेंट टर्म है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 12 आया, ठीक है। और ये मिडिल टर्म में क्या है? माइनस 8 है कोफिशिएंट, नो डाउट, ठीक है, माइनस 8 है। तो इस 12 को दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करेंगे। आई वुड लाइक टू ब्रेक 12 इन सच अ मैनर दैट आइदर बोथ टर्म आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड एमंग देम, देन इट गिव्स माइनस 8। जब इस 12 को दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक कीजिए ताकि दोनों का सम करें या तो दोनों का आपस में डिफरेंस क्रिएट कर डिफरेंस देखें तो वह माइनस 8 के बराबर हो जाए, ठीक है। इसे फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 जा 2 3 जा, मुझे चाहिए माइनस 8 सम करने पर या तो डिफरेंस क्रिएट करने पर। तो यहाँ पर देखिए 2 एंड 2 3 जा 6, 2 एंड 6 लेते हैं दो फैक्टर, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 12 आया, दोनों को आपस में ऐड कीजिए तो 2 + 6 8 आएगा। बट आई हैव रिक्वायर्ड माइनस 8, तो आगे में माइनस लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? -2 एंड -6 वुड बी द टू फैक्टर सच दैट दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। सो -2 मल्टीप्लाइड बाय -6 गिव्स 12 एंड -2 प्लस -6 विच ऑल्सो गिव्स -8। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं -2 एंड -6 वुड बी द टू फैक्टर। नाउ स्प्लिट करते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x, इट गिव्स -8x और ये प्लस 6 है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x टेक कॉमन, देन इट
gives x would be left, and here -1 would be left. -6 I'm taking common, then x would be left -1. So 2x, both must be same. Both part must be same. So 2x -6, and here one term would be x -1. So p of x would be this. Okay, and once again you can take 2 as common. So here you can say 2 times x -3 times x -1 p of x. Now अब आपको समझना है कि 2 times x -3 times x -1 is the linear factor for this polynomial 2x square minus 8x plus 6. Okay, now अब हमको देखना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज का मतलब है, यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और बोर्ड को भी देखें. p ऑफ x की वैल्यू 0 होगी. देयर आर 3 टर्म्स, 1 is 2 जो कि कांस्टेंट है, अनदर इज x -3, अनदर इज x -1. अच्छा, पॉलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, या तो यह टर्म 0 हो जाए, या तो सेकंड टर्म 0, या तो थर्ड टर्म 0. बिकॉज 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी संख्या के भी साथ मल्टीप्लाई कर दें, इट यील्ड्स, ये देता है हमें 0, प्रोडक्ट विल बी 0. सो यह तो 0 कभी नहीं हो सकता. फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है 2, कभी 0 नहीं हो सकता. अगर सेकंड टर्म 0 हो जाए, x -3 यह वैल्यू 0 हो जाए, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x एट विच x -3 गिव्स 0? तो डेफिनेटली x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 3 - 3 गिव्स 0. तो यहां से p ऑफ x इफ p of x is equals to 0 if x equals to 3 लेने पर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये टर्म 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0. और अगर यह टर्म 0 हो जाए, x -1 इक्वल्स टू 0, अगर x -1 इक्वल्स टू 0 इट मीन्स x इक्वल्स टू 1. अगर x की वैल्यू, इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1, देन दिस टर्म बिकम्स 0. सो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग बिकम्स 0, हैंस पॉलिनोमियल गिव्स 0 वैल्यू. सो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 होगा. ठीक है, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 0 यहां पर लगा देते हैं. ठीक है, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 इफ, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 0 और ठीक है x इक्वल्स टू 1. अब देखिए इसका मतलब जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए. ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं. वी हैव p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, एंड जीरोज आर x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1. ठीक है, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1 फॉर द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. नाउ इफ वी एड देम मीन्स व्हाट, सम ऑफ इट्स जीरोज करें, सम ऑफ इट्स जीरोज, दैट इज 3 + 1 गिव्स 4, विच इज नथिंग बट 4. देखिए अब यहां पर है -8 कोफिशिएंट ऑफ x एंड हियर इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2. तो अगर -8 अपॉन 2 करते हैं सो इट गिव्स -4, बट वी हैव रिक्वायर +4. आगे में आप माइनस लगा दें, क्लियर. सो अगर आगे में माइनस लगा देते तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8/2 गिव्स 4. इट मीन्स व्हाट, वी कैन से माइनस ऑफ -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है. सो कोफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 2. व्हाट अबाउट 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सी द रिलेशन, सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. नाउ प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros, that is 3 multiplied by 1
गिव्स 3। 3 आएगा कैसे? अगर कांस्टेंट और कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, इट मीन्स व्हाट? कांस्टेंट इज 6/2 विच गिव्स 3। सो मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। कांस्टेंट 6 इज व्हाट? कांस्टेंट अपॉन 2, व्हाट अबाउट 2? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। So in this manner we have established, we have seen the relation between zeros of the polynomial and its coefficient। देखिए कोफिशिएंट कांस्टेंट ये इसके बीच में रिलेशन को हमने देखा। सो ये दो फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और फर्दर क्लास में भी 10th क्लास 11th क्लास एंड थ्रू आउट होल लाइफ इसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, सो आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।